Good morning everyone. Happy Teachers Day. Teachers Day is celebrated in September every year. 5th of September is the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, who was the second Prime Minister of India. He was also a great scholar and a teacher. A teacher is a friend and guard for our life who also imparts good value in us. Teachers take the best effort to turn the students in the responsible citizen. Teachers play a very important role in each one of our life. Thank you. डांट कर चिल्लाया तो कभी हम पर प्यार देता है, कभी डांट कर चिल्लाया तो कभी हम पर प्यार देता है, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया तो कभी काले ब्लैक बोर्ड पर उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी काले ब्लैक बोर्ड पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी ढाल बनकर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु होने का फर्ज निभाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु होने का फर्ज निभाया। माता पिता बनकर दी सलाह, दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया, माता पिता बनकर दी सलाह, दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज मैं कहता हूँ टीचर्स को एक बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। Today I am going to say speech on the topic Teachers Day. Good morning to one and all, just like every year. This year also we have gathered here to celebrate Teachers Day. Every year the 5th of September is celebrated as Teachers Day in India, commemorating the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. As a teacher, Vice President and Second President of India, Dr. Rajendra Krishnanan made an immense contribution to the country. On this special occasion, I wish to convey my best wishes and greetings to all the teachers gathered here and to all those who have helped me attain success in my academics. As we all know that it is impossible to define teacher, as teachers are not only limited to teaching or guiding students in academics but also helping students to take the right plane. They add value to our character and make us ideal citizens to the country. Second, teachers are our second parents. Teachers play a prominent role in the influencing and inspiring us. Every student tries to emulate their teachers and consider them as a role model. After parents, teachers take the responsibilities of molding a child's character at each and every step. Therefore, it is our utmost duty to convey our wishes to teachers today in recognition of their undertreated efforts. Let us take time to pay honor and admire all their contribution in elevating us.
Thank you, teacher, for our invaluable efforts and guidance. Thank you. Hello everyone, today we celebrate Teachers' Day. It is a day kept aside to honor the gifted souls who work very hard to make sure that the future of us is bright. Teachers are our hopes as they gives us strength to survive. Every 5th of September is celebrated as Teachers' Day. It is a day filled of excitement, joy and happiness as students are eagerly looking forward to say that how and why the teachers are special to them. Teacher teaches students very carefully and sincerely just like their own child. As the saying goes that the teachers are greater than the parents because parents gives us birth whereas teachers shows us the right path in our life. As the teachers play a very important role in our life and we have to always be thankful to them and honor them. Thank you and happy Teachers' Day to all my dear teachers. Good morning everyone and all. This is Austin Sangati. As today we are celebrating Teachers' Day, I would like to say a few words for teachers. Teachers are pillar of the country. They shaped us, inspired us and many more. In similar words, they teach us to be a better human being. It is a prevalence to as unknown leads to hard works they do for us. Especially I would like to thank our Sunday school sir who would always guide us through the word of our Lord Jesus Christ. Because without unload we are nothing. Once again I wish you teacher happy Teachers' Day sir and teacher. मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका। ज़िंदगी रब ने दी लेकिन जीना आपने सिखाया। माता पिता ने मुझे संभाला लेकिन काबिल आप टीचर्स ने बनाया। ना मालूम थी मंजिल जिसे ना था चलने का पता, राह दिखाकर सफ़र बढ़ाया आपने। टैलेंट को जो मुझ में छुपा था उसे पहचाना, छोटी सी चिंगारी को आग बनाया आपने। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल आवर प्रीवियस टीचर्स। Thank you for guiding us. Praise the Lord. Hallelujah. ಪುನಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. हम जो है शिक्षक का दिन कर हम संडे हम मनाते हैं। ये जो है शिक्षक दिन जो है 5 सितंबर जो है इसको हर एक स्कूल में हर कॉलेज में जो है मनाया जाता है। और किसके याददाश्त में इस दिन को करते हैं मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर राधा कृष्णा जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके, उनके जन्मदिन पर कुछ लोग आकर वहाँ पर जन्मदिन का सेलिब्रेशन करने के लिए आए। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे जन्मदिन को मनाने से अच्छा है, बेहतर है कि तुम जो है शिक्षकों का दिन मनाओ। तब से लेकर उस दिन से लेकर 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णा के जन्मदिन पर जो है टीचर्स डे मनाने लगे। ये हमारे भारत देश में मनाने लगे। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು। ಆತನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು। उन्होंने जो एक अच्छा बात उन्होंने ये कहा, ए टीचर इज सपोज टू पोक यू विथ ए शार्प स्टिक कॉल्ड ट्रुथ। एक टीचर वो है कि एक जो है बहुत ही चुभेली कांटा जो है आपको चुभाए, वो है सत्य। सत्य की जो है कांटा आपके अंदर चुभाए कर डॉक्टर राधा कृष्णा वो कहते हैं। सच बात उन्होंने कहा है। एक सत्य बात को अगर एक गुरु, एक शिक्षक, एक टीचर अगर ना सिखाए तो शिक्षक का मतलब ही नहीं। आज हम कुछ सत्य बातों को हम बाइबल के द्वारा हम सुनेंगे। यूहन्ना का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 3 अध्याय अगर वहाँ पर हम पढ़े तो एक जो है व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो है
निकोदेमस। निकोदेमस जो है धर्म गुरु था। ನಿಕೋದೇಮಸನು ಧರ್ಮ ಗುರು ಆಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಗುರುವೇ, ನಾನು ಅನಂತ ಕಾಲದ ಜೀವಿತ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಗುರುವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗುರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣೆಯು ಈ ಧರ್ಮಗುರುಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. तुम जो है आत्मा और पानी के द्वारा तुमको नए सिरे से जन्मना है. यीशु मसीह जो है निकोदेमस को उन्होंने कहा. निकोदेमस जो है खुद एक गुरु होकर उसने यीशु मसीह को जो है गुरु कह दिया. और यूहन्ना का जो है ये भाग जो है शुरुआत यीशु की जो है मिनिस्ट्री की शुरुआत की बातों का हम देखते हैं. इन सारे बातों में जो है और भी हम कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे और यहाँ पर हम मनन भी करेंगे. एक अच्छा टीचर कौन है? ये टीचर जो है बनना पहले खुद जो है वो एक जो है ಶಿಕ್ಷಾ लेना चाहिए. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರು ಮೊದಲು ತಾನೇ ಕಲ್ತಿರುವಂತನು ಆಗಿರಬೇಕು. एक अच्छा टीचर पहले खुद अपने जीवन में पढ़ा हुआ रहना चाहिए, या किसी के आधीन में टीचर के गुरु के साथ में पढ़ा हुआ व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है. तब जाकर वो जो है एक शिक्षक बन सकता है. ಅವಾಗಲೇ ಆತನು ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಏನದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಟೀಚರು ಆಗುವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಗುವಂತರು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. जो धर्म गुरु मैं कहना चाहूँगा, रिलीजियस जो है प्रीस्ट, रिलीजियस टीचर जो शिक्षा देते हैं उनको जो है धर्म के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. और वो पढ़ते हैं, गुरु के अधीन में रहकर वो पढ़ते हैं और पढ़कर सीखते हैं. सीखने के बाद में उन बातों को जब वे दूसरों को सिखाने लगते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं. इसलिए हर एक व्यक्ति जो है सीखकर जो है टीचर बनना है, गुरु बनना है. यीशु मसीह अपनी सेवकाई जो है बहुत ही साधारण रीति से उन्होंने प्रारंभ किया. यीशु की शिक्षा जो है बहुत ही सिंपल और साधारण थी. ना समझ के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, या ऐसे कोई बातें जो है उनको नहीं समझ में आया. लेकिन कुछ बातों को वो जो है पैरेबल्स में, तोड़ों में वो कहते थे कुछ बातों को, लेकिन बाद में उनको खुलकर जो है वो समझाते थे. यीशु मसीह को जो है कई बार टाइटल शीर्षक भी दिए गए हैं. सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ये टाइटल मिला है. यीशु मसीह जो है एक दास बनकर आया, सर्वेंट. यीशु मसीह एक लीडर बनकर लोगों को अगुवाई किया. यीशु मसीह एक गुरु बनकर लोगों को जो है उसने सिखाया, और जो है अपने साथ में रखकर उसने कुछ लोगों को कोच भी किया, यानी कोचिंग किया. वो है उनके शिष्य, उनके डिसाइपल उनके साथ में थे. उन्होंने उनको पूरी तरह से एक मिनिस्ट्री के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में उन्होंने जो है सिखाया. इसलिए यीशु मसीह 3 बातों के द्वारा वो जो है प्रचार करते थे. 3 बातें वो क्या है? ये जो है पावर, वो शक्ति से जो है बातों को करते थे, सिखाते थे.
दूसरी बात, वो अधिकार के साथ में परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ में वो जो है बात करते थे। तीसरी बात, कुछ सिखाना है तो उसके पीछे मकसद या उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು. ಆತನ ಬರೀ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಬಡ ಜನಗೆ, ಕೆಳಗ ಮಟ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನದ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಜ್ಞಾನಿವಂತನಾಗಿರುವಂಥರು ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏನದ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಮರ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆತನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮೂಲಕ ಏನದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಫರಿಸಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಒಂದು ಫರಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಉತ್ತಮ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಿ. तू तो प्रभु तू गुरु है, तू किसी को देखता नहीं और तू जो है न्याय को सही करता है. इस बात को कहकर वे एक प्रश्न यीशु मसीह के सामने रखते हैं और पूछते हैं, क्या कैसर को कर देना उचित है? उन्होंने ये पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? यीशु मसीह बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण देता है, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो मंदिर का है उसे मंदिर को दो, या परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है कैसर को दो. उन्होंने किसी बात की जो है छूट नहीं दी. और यहाँ पर कहा जाता है कि वे आश्चर्य हो गए जब कभी यीशु मसीह लोगों को, भीड़ को उसने सिखाया. लोग जो है आश्चर्य हो गए और ये कहने लगे, ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या ये तो जो है मरियम यूसुफ का जो है बेटा है, कैसे ये जो है इस बातों को सिखा रहा है, कैसे इस कार्य को कर रहे हैं. बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के बातों को सुनकर वे आश्चर्य होते थे और भयभीत होकर परमेश्वर पे वे विश्वास करते थे. मत्ती का लिखा सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 29वां वचन, बहुत ही सुंदर वचनों को वहाँ पर जो है बताया गया और लोग आश्चर्य हुए. यीशु मसीह की शिक्षा, जो उसका टीचिंग जो है, मत्ती का लिखा सुसमाचार का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये जो है उसका मेन टीचिंग वहाँ पर हम देखते हैं. परमेश्वर के राज्य के विषय में, अनंत काल के जीवन के विषय में, और जो है सच्चाई में चलने के लिए जो जो हमको प्रिंसिपल चाहिए, उन सारे बातों को वहाँ पर वो यीशु मसीह सिखाता है. इसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं. ಸರ್ಮನ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟ್, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಡೀ बाइबल आधारवाಗಿದೆ. आज कहीं लोग, सेकुलर लोग जो है इन सारे बातों को उन्होंने पढ़ा है, और जो
प्रिंसिपल की बातें हैं उनको उन्होंने अपना कर अपने जीवन में वे चले हैं और वे ಪ್ರಸಿದ್ಧ हो चुके हैं. ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೋಧನೆಯು ಏನದ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हम किसी को जो है कंपेयर नहीं कर सकते. एक व्यक्ति कहता है जेम्स टॉट कर वो कहते हैं कि यीशु मसीह की शक्ति और यीशु मसीह की जो शिक्षा उसके तुलना में कोई और शक्ति नहीं, कोई और जो है टीचिंग नहीं है कर वो कहते हैं. किसी भी हालत में कोई भी क्षण में जो है किसी के साथ हम वो तुलना में नहीं ला सकते. यीशु मसीह का उतना पावरफुल जो है टीचिंग हम बाइबल में देखते हैं. प्रियो, यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा जो है उसने एक पापिन स्त्री को उसने बचाया. एक बार ऐसा हुआ कि लोग जो है एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़े और यीशु मसीह के पास लाकर ये कहे कि मूसा ने कहा है या उसकी शास्त्र कहती है या आज्ञा इस प्रकार से है, ऐसे लोगों को पत्थर मार मार कर मार डालना है. आप क्या कहते हैं? आप क्या न्याय करते हैं? यीशु मसीह ने एक साधारण बात उनके सामने रखा. उसने ये कहा कि तुम में से जो कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उस स्त्री पर मारे. इतना ही बात जो है सारे लोगों को हिला दिया और सारे लोग जो है हिल गए और उन्होंने अपने मन में सोच ले कि मैंने कहीं तो कहीं या कभी ना कभी मैं पाप किया हूँ. इसलिए वे सभी लोग अपने पत्थरों को नीचे डाले और वहाँ से चल पड़े. एक साधारण बात के द्वारा जो है या मूसा को धर्म को जो है बातों को उन्होंने साधारण सिंपल में उन्होंने कहकर एक उसने यीशु मसीह ने बचाया. प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसे हो. हम यीशु मसीह में रहकर जब हम उसकी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, उसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी है. मैंने कहा निकोदेमस जब जो है वो संध्या के समय में यीशु मसीह को आकर पूछता है कि आनंद काल जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने जो कहा उसने अपने जीवन में उस बात को उसने किया और वो उद्धार पाया. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तब निकोदेमस ही व्यक्ति था जो जाकर यीशु की देह को मांगा और उसको उतराकर उसने समाधि किया. यीशु मसीह बहुत सारी बातों को वो कहता है, बाहरी रूप की जो है उसके बारे में ना देखे, लेकिन जो भीतर जो है जो हमको अशुद्ध करते हैं उन बातों को हम छोड़ दे, उन बातों का हम निकाल दे. यीशु मसीह बहुत ही सिंपल जो है लोगों को वो सिखाया. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जो है वो एक भला और एक बेहतर जो है धर्म गुरु है. आज उसकी शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी वो चल पड़े, हमारे भारत देश के आज़ादी के लिए वो चल पड़े और उन्होंने एक महत्व रखा, वो है अहिंसा. यानी जो हमको संकट देते हैं उनको फिर से दोबारा संकट ना दे. उन्होंने ये कहा एक गाल पर अगर कोई मारे तो दूसरा गाल उन्हें दे. ये यीशु मसीह सिखाया हुआ जो है तत्व है, डॉक्ट्रिन है या प्रिंसिपल है, महात्मा गांधी ने उन्होंने अपनाया कर हम देखते हैं. इसलिए महात्मा गांधी के जीवन में यीशु मसीह के लिए बहुत ही बड़ा स्थान था. वे उसको मानते थे. हम अपने जीवन में जब हम मानते हैं तो केवल मानना ही नहीं, उस पर विश्वास कर हमको चलना है.
तब हम उद्धार पाएंगे, हम उसके बच्चे बनेंगे। यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पढ़ा लिखा नहीं था। प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, यीशु मसीह अगर सिखाना है, किसी को सिखाना था, तो उसने जो है बेसिक एजुकेशन, बेसिक पढ़ाई जो अपने माता पिता के सम्मुख में या घर में उसने पढ़ा, और यहूदी परंपरा के अनुसार छोटे बच्चों को मूसा के धर्मशास्त्र को और जो है पवित्र जो है जो वचन है उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए लोग उससे कहते थे कि ए उत्तम गुरु, ये रब्बी कर कर उन्हें कहते थे। और रब्बी जो है उसी को दिया जाता है जो शास्त्र में निपुण हो, शास्त्र में निपुण हो। यीशु मसीह जो है वो यशायाह के ग्रंथ को लेकर वो जो है सिनागोग में वो जो है पढ़ता है। परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं गरीबों को सुसमाचार दो, रोगियों को चंगाई करो, और जो बंदी में है उनको मैं छुटकारा दो। यानी सिखाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। हम उसके बच्चे हैं। जो कोई टीचर बनना चाहते, जो कोई गुरु बनना चाहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो यीशु मसीह के आदिन में बनकर चले। ये आत्मिक बातों को जो सिखाना चाहते हैं वो पहले जो है खुद आत्मिक बातों को सीखे। याकूब का लिखा हुआ पुस्तक में 3 अध्याय 1 वचन यहाँ पर हम देखते हैं। नए नियम में ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಂಧಿಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ, ನಾವು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅನೇಕರು ಬೋಧಕರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀರ್ಪು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. जो सिखाते हैं उनको जो है भारी दंड भी होता है. वो ये नहीं कह रहा कि तुम शिक्षक ना बनो, लेकिन समझकर सोचकर हर कोई सिखा नहीं सकते परमेश्वर के वचन को. जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित बनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानकर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है, परमेश्वर की आत्मा उन्हें सिखाती है, तब जाकर वो दूसरों को सिखा सकते हैं. हम कलीसिया में बहुत इम्पोर्टेंट हम देते हैं किनको? संडे स्कूल टीचर्स को, संडे स्कूल सुपरडेंट को हम बहुत ही महत्व देते हैं. कई बार अच्छे टीचर हमको मिलते हैं और कई लोग जो है अच्छे टीचर रहकर भी अच्छे बातों को नहीं सिखा पाते. क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल जीवन जो है यीशु मसीह के जो है शिक्षा के अनुसार नहीं होता. यीशु मसीह के बातों को सिखाने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं. इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि संडे स्कूल के टीचर आपको जो है परमेश्वर ने चुना है, तो आप ईमानदारी के द्वारा परमेश्वर के वचन को पहले सीखें और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाएं. VBS होता है, बहुत से लोग टीचर बनने के लिए आते हैं और बहुत से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि तुम टीचर बनो, वॉलंटियर बनो करके बच्चों को भेजते हैं. अच्छी बात है, लेकिन ये आप समझे, जब आप बच्चों को सिखाते हो, लेसन्स को सिखाते हो, पहले खुद प्रिपेयर्ड हो, पहले खुद तैयारी हो, पहले प्रभु के वचन को तुम समझे. खुद समझने के बाद में तुम बच्चों को सिखा सकते हो. एक अच्छा टीचर बनोगे तो वो बच्चे जिन्होंने आपका बातों को सुना है वो अपने जीवन में कभी नहीं बोलेंगे. जब ये छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े बनेंगे वो याद करेंगे कि मेरी संडे स्कूल की टीचर, मेरा संडे स्कूल का टीचर ये थे और इन बातों को उन्होंने सिखाया है. ये जो है कलीसिया के बारे में कहना चाह रहा हूँ मैं. प्लीज़ इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने. और घर पर हमें कोई टीचर नहीं है,
सिखाने के लिए, लेकिन खाना पीना, बोलना, कपड़े पहनना, कैसे हम बर्ताव को करें, किस काम को कब करें, ये कौन सिखाता है? एक शिस्त, एक डिसिप्लिन कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। इसलिए मैं माता पिताओं से भी कहना चाहूँगा, तुमको जो है बच्चे टीचर कर कर नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उनके जीवन के लिए एक टीचर है, एक गुरु है। परमेश्वर ने आपको रखा है कि इन सारे बातों को सिखाए। स्कूल में मेरे बच्चे जाकर सीखेंगे, पढ़ेंगे करके हम आशा को लगा कर रखते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता पहले अपने बच्चों को अपने घर में, अपने परिवार के बारे में, अपने भाई बंधु के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में सिखाए। किसको सम्मान देना है, किन से हम कैसे बात करना चाहिए, किसकी बातों को सुनकर चलना चाहिए, कब हम दूसरों को क्षमा करना है, ये सारे बातें हम सिखा सकते हैं। ये इसलिए मैं माता पिता को मैं जो है प्रोत्साहित करता हूँ। हम अपने कुछ पहले हम सोचते थे, हमारे माता पिता ये सोचते थे कि हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो जो मॉरली एथिकल बातें हैं वो भी सीख लेंगे। प्रियो, पहले था कुछ लेसन्स था, मॉरल एथिकल लेसन्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आज बच्चे सीख कर भी उन बातों को नहीं अपना रहे। सब कुछ जो है स्कूल में नहीं सीख पाओगे। आज जो है फोकस, कैसे हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट बने, कैसे हमारे बच्चे जो है परसेंटेज मार्क्स को लाए, इसके बारे में, या हमारे बच्चे कैसे जो एक जीवन में एक अच्छा स्थान को पाए, प्रोफेशनली कैसे बने, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे। हमें ध्यान देना है। हम अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया में अपने बच्चों के लिए हम ये ध्यान दें, उनकी गुण को, उनके कैरेक्टर को कैसे हम मॉडिफाई करें। जब उनके कैरेक्टर, उनके लक्षण को जब हम बदल देंगे तो उनका जीवन एक सही और सच्चे मार्ग पर प्रभु के साथ में वे चलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए वे जो है क्लैरिटी के साथ सिखाए और बच्चों के समझ के अनुसार, अगर छोटे बच्चे छोटे थोड़े बड़े हैं तो उनके बड़ों के नाई हम सिखाए, और जब हम सिखाए तो उस बात को हम अपने जीवन में भी करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यीशु मसीह जो कुछ बातें उन्होंने सिखाया उन्होंने अपने जीवन में पहले किया। इसलिए यीशु मसीह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। यीशु मसीह हमारे लिए एक बेस्ट टीचर है। उसकी बातों को जब जब हम पढ़े, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, और जब हम उसको सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली भी करें, तब जाकर हम जो है, अगर टीचर है तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम एक माता पिता है तो हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखा सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु आज हमसे उन्होंने बातें किया है। आओ हम अपने सर को झुकाकर इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ಕರ್ತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಬಿಎಸ್ ಆಗುವಾಗ ವಿಬಿಎಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ।
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿ. ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. इन वचनों का आपने सुना है. मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है इन वचन को दूसरों तक, हमारे कलीसिया लोगों के तक आप पहुँचाएंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಚರ್ಚ್ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ MYF ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯೌವನಸ್ಥರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ऑनलाइन में आप सभी जवान बच्चे ज्वाइंट होने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ. और इसी के साथ में जो संडे स्कूल जो है वो हर जो है संडे शाम को 7 बजे जो है ऑनलाइन चलाया जाता है. इसमें बच्चे जुड़े हैं और भी बच्चों को जुड़ने के लिए मैं माता पिताओं से मैं विनती करता हूँ. और जो है ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗಟಿ ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ವಿಲ್ಸನ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಡಿ ಇವರ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಇವರ ಮದುವೆ 16 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಾಥೋಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಪರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದುವೆಯ 2ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತರಗಳು ಇದ್ದಿದ್ಯಾದರೆ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಏನದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ जहाँ ऑफिस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं चलते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करो, मास्क को पहनो और अपने हाथों को सैनिटाइज से जो है धो ले. या जब आप घर में आते हैं तो फिर से कहना चाहूँगा कि आप पानी साबुन से अपने हाथ को अच्छी तरह से धो ले और आप साफ़ सुथरा रहकर जो है रहने के लिए आपसे विनती करता हूँ. क्योंकि केवल जो व्यक्ति बाहर जाता है वो केवल अकेला नहीं, लेकिन जब लौट कर आता है उसके साथ में घर में परिवार है. इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान देने के लिए मैं फिर से आप सभी से मैं विनती करता हूँ. और गर्म पानी का इस्तेमाल आप हमेशा
पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ। ये है जनरल में एक प्रिकॉशन के लिए मैं कह रहा हूँ, इसे हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर से याद दिलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इस पर अमल करेंगे, मैं विश्वास रखता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। और फिर एक बार मैं टीचर्स डे के दिन पर सभी हमारे कलीसिया के टीचर्स और जो वीबीएस के जो टीचर्स हैं उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। विश यू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।